Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. I hope you all are fine and staying safe and happy. I am your GK teacher, Ms. Farheen, and I welcome you all to your GK class. My dear students, as you know that we are on unit number 6, that is Changing World, and today I will deliver its 4th lecture. So my dear students, let's start the lecture with the recap of the previous lecture. Listen to the questions very carefully and then answer them. So quickly tell me, explain in a sequence that how did wheels transform? People used to drag the load with the ropes. Then they started using sledges, and on the edge of each on the sledges, they used to put wooden logs. Then they started making the wooden logs bigger, and they started making holes in the center of the wooden logs, which started working like wheels. Then in 1845, the first air-filled wheel was invented. So this is how the wheel invented, and this is the chronology of wheel, or the timeline of the wheel. So my dear students, in today's lecture, the students will be able to identify how school, communities and transportation have changed over time from the given pictures. The students today will be able to sequence event in a narrative in chronological order. यानी कि हम प्रीवियस लेक्चर में जो हमने एसएलओ कवर किया था, आज हम दोबारा वही एसएलओ जो है वो कवर करेंगे, जिसमें आप क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर के अंदर जो इवेंट्स हैं उनको देखेंगे, और क्योंकि आज हम एक प्रोजेक्ट बनाने वाले हैं अबाउट कंप्यूटर्स. सो माय डियर स्टूडेंट्स, लेट्स क्विकली लुक एट द इस्लामिक पर्सपेक्टिव. अल्लाह सेज इन कुरान, O believers, fasting is prescribed for you as it was prescribed for the people before you, so that you may become pious. So my dear students, कुछ भी चेंज हो जाए वक्त के साथ साथ, टेक्नोलॉजी के साथ साथ चीज़ें तब्दील हो रही हैं, बट रिलीजन विल रिमेन द सेम. जो टीचिंग्स हैं इस्लाम की, जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, जो अल्लाह ताला की टीचिंग्स हैं, दे विल रिमेन द सेम फॉर एवरीवन. So my dear students, the pre-reading question, quickly tell me that what is meant by chronological order? It is the timeline of the events. Very good. Okay, my dear students, now quickly open page number 54 in your GK3 books. I hope everybody has opened the page. So my dear students, here you can see that today we are going to make a project. So first look at the instructions for this project. The first computer was invented in 1936. It evolved with time. यानी कि पहला कंप्यूटर जो है वो 1930 की दिहाई में बना था, 1930s के एरा में जो है वो बना था, और अब जो है आहिस्ता आहिस्ता जो है वो अब तक ये काफ़ी ज़्यादा जो है evolve हो चुका है. Search out evolution of the computer and express it with the help of pictures in a story. So जैसे हमने व्हील की स्टोरी पढ़ी थी, इसी तरीके से हम कंप्यूटर की स्टोरी को पढ़ेंगे, और आप उन पिक्चर्स को इन बॉक्सेस के अंदर पेस्ट करेंगे. So no problem, आपको कुछ सर्च करने की जरूरत नहीं है. I have done everything for you, all the working. So here you can see, मैं आपको आहिस्ता आहिस्ता बताती जाती हूँ. In the era of 1930, the first computer was invented. After that, it was evolved in 1940. पहले आप देख सकते हैं कि ये पूरे रूम जितना कंप्यूटर था, उसके बाद इसको थोड़ा सा छोटा किया गया. And then in 1950, it was again its size was decreased, यानी कि आहिस्ता आहिस्ता आप देख रहे हैं साइज कम होता जा रहा है. Then in 1960 it was on a table. Then it was like a screen, a TV in 1970. Then in 1980 you can see कि आपको different जो है वो इसके साथ equipments और भी नज़र आ रही हैं. Then in 1990 मैंने ये वाला कंप्यूटर देखा हुआ है 1990s में जो होता था. And now in 2000s आप देख सकते हैं कि कंप्यूटर जो है ये बहुत ज़्यादा मॉडिफाई और इवॉल्व हो चुका है. यानी कि एक रूम जितने बड़े कंप्यूटर से लेके कंप्यूटर जो है वो आपकी टेबल के ऊपर आ चुका है. एंड इफ़ यू लुक एट द मोबाइल, क्योंकि मोबाइल भी जो है इट इज़ ऑल्सो अ फॉर्म ऑफ अ कंप्यूटर, तो ये आपके हाथ पर आ चुका है. सो अ लॉट ऑफ अ लॉन्ग वे, अ लॉन्ग जर्नी फॉर द कंप्यूटर्स. सो माय डियर स्टूडेंट्स, इसकी अगर हम स्टोरी स्टार्ट करें, सो यू कैन सी दैट द फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर, यानी कि जो 1930s और 40s में कंप्यूटर्स बने थे, they were called the first generation computers, and they have vacuum tubes in them. So these ancient computers utilized vacuum tubes as circuitry and magnetic drums for recollection. As a result, they were huge, actually taking up entire rooms and costing resources to run. So my dear students, ये काफ़ी expensive भी थे और बहुत ज़्यादा बड़े होते थे,
तो इनकी एफिशिएंसी जो है वो इतनी ज़्यादा नहीं थी। सो इनको ज़्यादा फास्ट करने के लिए क्या हुआ कि सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर्स आए इन 1950s। सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर्स हैव ट्रांजिस्टर्स, यानी कि जैसे पहले वाले कंप्यूटर्स जो थे जो 1930 में या 1940 में आए थे उनके अंदर वैक्यूम ट्यूब्स थी, तो जो सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर्स हैं उनके अंदर ट्रांजिस्टर्स आए, जिसकी वजह से इन कंप्यूटर्स की जो साइज थे वो कम हो गए और कुछ जो इनका सर्किटरी और जो इनका वर्क था वो कम हो गया। Then it came the third generation computers in 1960s और इनके अंदर इंटीग्रेटेड सर्किट्स जो हैं वो इंट्रोड्यूस किए गए, जिसकी वजह से यू कैन सी कि इंटीग्रेटेड सर्किट्स होने की वजह से इन कंप्यूटर्स का साइज जो है वो बहुत कम हो गया। इनके अंदर चिप बोर्ड्स इंस्टॉल किए गए, जिसकी वजह से इनका जो है वो वर्किंग भी इनकी फास्ट हुई, इनका साइज भी कम हो गया। Then came fourth generation computers in 1990s and in 2000s तक में आए जो थे ये कंप्यूटर्स, they were called the fourth generation computers और इनके अंदर माइक्रो प्रोसेसर्स जो हैं उन्होंने जगह ले ली थी, जिसकी वजह से माइक्रो प्रोसेसर, दिस इज अ माइक्रो प्रोसेसिंग चिप, जो कि इंस्टॉल होने की वजह से इन कंप्यूटर्स की स्पीड जो है इट बिकेम वेरी फास्ट और ये इनकी जो कनेक्टिविटी था और जो इनकी वर्किंग थी वो काफ़ी इंप्रूव हो गई। Then came the fifth generation computers जो कि हम आजकल भी यूज कर रहे हैं। They are the latest computers. They are called the computers with artificial intelligence और ये 2010 के onwards जो है we are using these computers. They are super fast और आप कुछ भी आपने इनसे पूछना हो, कुछ भी आपको गूगल सर्च करना हो, they are just a click away. So this is the story of computer कि कैसे जो है एक रूम जितने बड़े कंप्यूटर से जो है कंप्यूटर आपके टेबल के ऊपर आ गया। सो आप इसको किस तरीके से लिखेंगे, आपके पास यहाँ जो है जो मैंने आपको स्टार्ट में एक शीट दिखाई थी, दिस शीट। सो मैंने आपको दिस शीट कैन बी डाउनलोडेड फ्रॉम द डिस्क्रिप्शन बॉक्स बिलो दिस वीडियो। आप इनके कटआउट्स लेंगे और आप इनको अपनी बुक में स्टोरी की तरह से इन बॉक्सेस में पेस्ट कर लेंगे। ओके, दीज बॉक्सेस आर 6 क्योंकि 6 हैं, लेकिन यहाँ पे जो कंप्यूटर के एवोल्यूशन है वो मैंने 8 उनके अंदर पिक्चर्स के अंदर दिखाया है, तो आप उनको ऊपर नीचे करके थोड़ा सा पेस्ट कर लीजिएगा। ओके, एंड ऑल्सो मेंशन द ईयर विद इट। नेक्स्ट, सारी स्टोरी हो गई कंप्यूटर की। इसके बाद आपको क्या करना है, नाउ यूज योर क्रिएटिव स्किल्स एंड सजेस्ट व्हाट विल बी नेक्स्ट स्टेप इन दिस स्टोरी। सो अब आपको अपनी क्रिएटिव थिंकिंग से सोचना है कि अब जो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वाला जो कंप्यूटर जो हम आजकल यूज कर रहे हैं इसका फ्यूचर क्या होगा। इससे भी लेटेस्ट कोई टेक्नोलॉजी आएगी, ऑफ कोर्स आएगी। होलोग्राफिक टेक्नोलॉजी इंट्रोड्यूस करवाई जा रही है, इसके अलावा और बहुत सी डिफरेंट टेक्नोलॉजीज हैं, जो क्लाउड टेक्नोलॉजी है जो कि आजकल भी यूज हो रही है, इसको और ज़्यादा एडवांस किया जा रहा है। सो कंप्यूटर्स जो है ये बहुत ज़्यादा एडवांस किए जा रहे हैं और मैं आपको इसकी मोस्ट एडवांस फॉर्म दिखाती हूँ जो कि बिल गेट्स जो है उसने इंट्रोड्यूस करवाई है एंड ही हैज़ ऑल्सो सेड कि अभी तो आप लोगों ने कुछ भी नहीं देखा। So there will be a whole evolution in computers and it will keep evolving. टेक्नोलॉजी जो है ये evolve होती रहती है। So आपको ये देखने में क्या लग रहा है? What do you think what it is? ये एक लेटेस्ट आइडिया है कंप्यूटर का। These are called the, ये पेन्स हैं। These can be taken anywhere. आप इनको अपनी पॉकेट में लेके जा सकते हैं और कहीं भी ले जा सकते हैं। And what is its purpose? इन पेन्स के साथ आप प्रोजेक्ट कर सकते हैं कंप्यूटर की स्क्रीन, योर माउस, योर कीबोर्ड। सो एवरीथिंग इज इनसाइड अ पेन और उसकी प्रोजेक्टर से जो है आप कंप्यूटर को जो है वो यूज कर सकते हैं। आपको सिर्फ एक फ्लैट स्पेस चाहिए एंड यू आर कैरिंग अ पेन इनसाइड योर पॉकेट, अ कंप्यूटर इनसाइड योर पॉकेट, यानी कि आपका पर्सनल कंप्यूटर जो है वो अब आपकी पॉकेट के अंदर है। सो दिस इज द लेटेस्ट इन्वेंशन, ये फ्यूचर है जो कि जिसके ऊपर अब वर्क किया जा रहा है। सो ये मेरी सर्च है, ये मैंने फाइंड आउट किया है। अगर आपको लगता है कि इससे भी ज़्यादा कोई इन्वेंशन और कंप्यूटर के अंदर आ सकती है, व्हाट आर योर थॉट्स ऑन इट, तो यू कैन ऑल्सो ड्रॉ इट और यू कैन पेस्ट द पिक्चर। ओके, सो माय डियर स्टूडेंट्स, नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड फॉर प्रैक्टिस। व्हाट यू नीड टू डू इज यू विल मेक योर फ्यूचर कंप्यूटर, ठीक है, जैसा आपको लगता है कि कैसे टेक्नोलॉजी उसको एडवांस करेगी। सो आप अपना आइडिया यहाँ पे पेस्ट करेंगे, बाकी जो आपकी वर्किंग है उसको आप क्लास में कंप्लीट कीजिएगा। एवोल्यूशन, so evaluation. So my dear students, quickly tell me, explain in sequence that how did computers transform. In 1930s there was a computer with vacuum tubes which was very big. Then came the transistors, इसके बाद microprocessors आए, इसके बाद जो है वो
फ्यूचर जनरेशन कंप्यूटर्स जो हैं, जो आर्टिफिशियल टेक्नोलॉजी वाले कंप्यूटर्स हैं वो आए, और कंप्यूटर जो है फ्रॉम अ रूम साइज कंप्यूटर नाउ इट इज़ ऑन योर टेबल, क्योंकि ये इतना स्क्वीज हो चुका है. So this is the story or the evolution of computer. Now let's move forward towards your homework. For homework, you will do question from exercise D and E. ये दोनों questions आप करेंगे. So what do you think the communication system might look like in future? Write down your point of view in 4 or 5 sentences. So my dear students, आपको पता है कि communication बहुत ज़्यादा जो है वो evolve हो चुकी है, बहुत ज़्यादा एडवांस हो चुकी है. अब आपको लगता है कि फ्यूचर में कैसे कम्युनिकेशन स्किल्स जो हैं वो और ज़्यादा एडवांस हो जाएंगे. आपको क्या करना है कि आप को 4 और 5 सेंटेंसेस जो हैं इस बारे में अपनी नोटबुक में लिखने हैं. आप इसके बारे में ये लिख कर सकते हैं कि होलोग्राफिक जो टेक्नोलॉजी है वो बहुत ज़्यादा इन होती जा रही है. तो अब जो है आप फिजिकली जो है आपका जो स्ट्रक्चर है दैट कैन बी इन इंग्लैंड और अमेरिका और इन एनीवेयर. इट विल बी प्रोजेक्टेड बाय लाइट्स. ओरिजिनली तो आप नहीं होंगे, लेकिन आपकी पूरी बॉडी को 3D जो है उसके अंदर देखा जाएगा. दिस इज कॉल्ड होलोग्राफिक टेक्नोलॉजी. सो इस तरीके से आप कम्युनिकेशन स्किल्स के बारे में 4 और 5 सेंटेंसेस सर्च करें और उसको अपनी नोटबुक में कीजिएगा. नेक्स्ट, एनसर्कल द करेक्ट ऑप्शन अगेंस्ट ईच स्टेटमेंट. सो यहाँ पर 4 स्टेटमेंट्स दी गई हैं, हर स्टेटमेंट के साथ ऑप्शन है. सो यू हैव टू select the correct option. Mud houses were common in past, present or both? Past. Mobile phones are a source of transportation, communication, traveling, communication. Internet is used to communicate, educate, both. Both. So the first air-filled tires were invented in 1840, 1845, 1850. So it was 1845. Number 5. Identify old means of transportation. So here you can see 3 pictures. So which is the oldest form of transportation? That is via animals. So my dear students, this is how you will complete it in your homework. Now we will move forward towards the wrap up. So today we have learned that first generation computer had vacuum tubes. Second generation computer had transistors. Third generation computers has integrated circuits. Fourth generation computer had microprocessors. And the latest one are the 5th generation computers, which are called the computers with artificial intelligence. So my dear students, this is the story of computer. This is the evolution of computer. I hope you have enjoyed it. Keep everybody around you safe. Have a good day. Thank you so much, and Allah.